A very good evening, class 12th. This is the first time I'm making a video which is a one shot, which means एक ही बार में पूरा चैप्टर हो जाएगा. Class 10th से I'm beginning. We are in 2025 and I'm starting this video for chapter 1 जो है chemical reactions and equations made by me. और जिस भी कंटेंट के पास if you see a star, इसका मतलब इसका लैब वीडियो अवेलेबल है ऑन द चैनल. मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक का अगर आपको लैब में रिएक्शन देखना है तो उसका भी वीडियो इज अवेलेबल ऑन द चैनल. यू ओनली नीड टू टाइप द टॉपिक and write Seema Makhijani after it on YouTube and you will reach my channel. So let's begin with chapter 1, one shot video by Seema Makhijani. I'll be doing one shot videos for all the 4 chapters of chemistry to make chemistry easier for you class 10 students. So in this particular video, first thing that you need to understand is what is a chemical equation. Now a chemical equation is, it has a left hand side and a right hand side. जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं. जो आप एरो के बाद लिखते हो दोज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स. उसके सिवा इक्वेशन में ऐसे लिखा हो किसी चीज के आगे स्मॉल एस मतलब सॉलिड है. अ स्मॉल एल मीन्स इट इज अ लिक्विड. ए क्यू मीन्स सॉल्यूशन इन वाटर which means aqueous, that is the short form. Arrow upwards and arrow downwards only products में होता है. Arrow upwards means it is a gas evolved, gas as a product. Arrow downwards means insoluble product, but it has to be product. ये arrow upward and arrow downward सिर्फ products में लगता है, reactants में नहीं. Upward arrow का मतलब there is a gas evolved in the reaction, which means ये दोनों चीजें arrow upward and arrow downward are only to be done for products. Am I clear? Now moving on further. If I have a reaction, hydrogen reacts with chlorine to give you hydrochloric acid. अगर ये ऐसे लिखा है then it is called as the word equation. Hydrogen plus chlorine gives you hydrochloric acid. Now if you write the symbols and the formulae, then we write it as H2. Hydrogen is a diatomic molecule. Hydrogen, 2 atoms exist together. 2 atom हमेशा साथ रहते हैं. So whenever you write hydrogen, it is always H2. Chlorine भी you always write it as Cl2. In fact, अगर आपको नाइट्रोजन लिखना हो तो नाइट्रोजन भी हम N2 लिखते हैं. ब्रोमीन लिखना हो तो हम Br2 लिखते हैं. There are certain elements which exist as diatomic molecule. So this is how you write. O2 लिखते हैं. Fine. These are diatomic के examples. So H2 reacts with chlorine to give you HCl is the skeletal equation which is not balanced. Plus इसके आगे अगर आपने ऐसे लिख दिया गैस 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 का मतलब you are making the equation more informative. When you put solid, liquid, aqueous, gas, product, insoluble, product ये सब लिखते हैं तो it means you are making the equation informative. Now इसके सिवा यू नीड टू बैलेंस इट. जब हम बैलेंसिंग करते हैं ना तो आपको नंबर्स डालने पड़ते हैं, पर ये नंबर सिंबल और फॉर्मूला को कुछ नहीं करना है, इसके अंदर नहीं डालना है. ये नंबर आप सिर्फ बाहर डाल सकते हो. यहाँ पे 2H 2Cl. सो टू मेक इट बैलेंस यू नीड टू पुट अ 2 हियर. सो टू बैलेंस दिस इक्वेशन यू विल बी पुटिंग अ 2 लाइक दिस. That will balance the equation. You cannot put numbers in between the symbols and the formulas. They are to be put outside the symbol and the formula. Up, this balancing of equation is on the basis of a law, which is the law of conservation of mass. ये कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में. Which law is applicable to balancing of equation? The law is conservation of mass. ये कैसे है? Now if you take the products का और reactants का mass, this side you have 2 hydrogens 2 chlorines, इधर भी you have 2 hydrogens and 2 chlorines. So इसका mass और इसका mass बराबर आएगा. Law of conservation of mass states that your reactants mass should be equal to products mass. Total mass of reactants and products should be equal and that can only happen by balancing the chemical equation. आगे बढ़ते हैं. Types of chemical reactions. The first category under this is called as
कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का व्हाट इज सो स्पेशल? रिएक्टेंट्स आर मोर इन नंबर बट प्रोडक्ट इज सिंगल. राइट हैंड साइड पर एक ही चीज होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा चीजें होंगी. मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन to give you a single product is a definition of combination reaction. Combination reaction is a reaction where more number of reactants react to give you a single product. Moving on to the examples. Example number 1. Magnesium reacts with oxygen on heating. Heat का sign ऐसे लगाते हैं on the arrow. Gives you magnesium oxide plus heat plus a dazzling white light. अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो please watch the video on my channel. जस्ट राइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बाय सीमा माखीजानी और आपको ये वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा. डैजलिंग व्हाइट लाइट क्या होती है आपको पता लग जाएगा. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू अगेन कंबाइन टू गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बाय प्रोडक्ट में हीट भी आता है और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, कंबाइन करता है हीट करने पर, गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड देयर इज हीट लिबरेटेड. All these three reactions में reactant ज़्यादा नंबर में है, 2 going to 1, 2 going to 1, 2 going to 1. Product will always be a single product. Of course, you need to balance the equation. O2 है, so I put a 2 here and a 2 here. Now the equation is balanced. इसको देखिए, it is already balanced. Calcium 1, oxygen 1 and 1, 2, hydrogen 2. So OH whole twice means 2 oxygens and 2 hydrogens. So this equation is already balanced. This is also balanced. These two reactions you can watch on the channel. Just type combination reactions by Seema Makhijani और आप combination reaction lab में देख लेंगे. Dazzling white light भी आपको एक वीडियो में दिख जाएगा. Fine. Moving on to the second category of reaction. ये जो second category of reaction है उसका नाम है decomposition reaction. ये is reverse of combination. Decomposition में left hand side पे you have reactants. Reactant is single. It breaks down to give you more number of products. तो ये उल्टा हो गया. Decomposition reaction is opposite of combination reaction where you have single reactant and multiple products. Now if you have to break, तोड़ने के लिए तो energy चाहिए होगी ना. ये energy can be in 3 forms. It can be in the form of heat. अगर हीट यूज करके यू आर ब्रेकिंग इट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल डीकॉम्पोजिशन. अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन. और अगर सनलाइट को यूज करके यू आर ब्रेकिंग द सिंगल रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन. एक एक करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा होने चाहिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम. सो when the energy is needed, we'll go to the first form. First form में heat चाहिए. Such reactions are called as thermal decomposition reaction. Example 1 देखिए. Calcium carbonate को जब हम heat करते हैं, it gives you calcium oxide plus gives you carbon dioxide which is a gas. So single reactant gives you multiple products, so it comes under the category of thermal decomposition क्योंकि आप इसको heat कर रहे हैं. The second example is lead nitrate. जब lead nitrate को हम heat करते हैं तो it gives you lead oxide plus it gives you NO2 gas plus it gives you O2 gas. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड में आता है. इस इक्वेशन में खासियत क्या है? लेट अस बैलेंस द इक्वेशन. उससे पहले दिस गैस इज ब्राउन इन कलर एंड वॉट एवर यू आर लेफ्ट विथ इज अ येलो कलर्ड सॉलिड. इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यू विल रिक्वायर टू पुट अ 2 हियर. अगर यहाँ 2 डालेंगे तो लेड ऑक्साइड पे भी 2 डालना पड़ेगा. नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 into 2 दैट इज 4, तो यहाँ पे ये 4 डालना पड़ेगा. ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं. 2 4 2 8 and 2 10 and 2 12 और यहाँ पे कितने? 3 2 6 and into 2 दैट इज 12. सो 12 ऑक्सीजन दोनों साइड्स पे है. सो द इक्वेशन इज बैलेंस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. पेपर में इस इक्वेशन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. एक और रिएक्शन है वेर यू यूज फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट पेल ग्रीन कलर का होता है. इसको भी जब हम हीट करते हैं तो इट ऑल्सो अंडरगोज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन गिविंग यू
ferric oxide, plus it gives you a gas SO2, plus it gives you a gas SO3. ये दोनों गैसेस कलरलेस हैं, पंजेंट स्मेलिंग है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है और ये एसिडिक है. इसके सिवा मैं यहाँ पे और कुछ नहीं बता रही हूँ. दोनों के लिए अ वीडियो इज अवेलेबल. लैब में ये दोनों रिएक्शंस करके आपको क्या क्या दिखता है आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं. सिर्फ टाइप करिए डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्लास 10 बाय सीमा माखीजानी और आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे. इन दोनों वीडियोस में इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है. Fe2 है इसलिए आई एम पुटिंग अ 2 हियर. सल्फर 2 हो गए हैं. ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं. 3 + 2 5 + 3 8 4 2 8 5. सो इक्वेशन बैलेंस्ड है. ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. आपके पेपर में ये दोनों इक्वेशंस में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड तो यू नीड टू राइट दिस. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड देन यू नीड टू राइट ब्राउन कलर्ड गैस इज इवॉल्व्ड, अ येलो सॉलिड इज फॉर्म्ड. What do you observe when ferrous sulfate is heated? Your green colored solid changes to brown solid. Colorless gases are released which have a smell of burning sulfur and they are acidic in nature. Acidic कैसे चेक करते हैं उसके लिए आप वीडियो को चेक कर लीजिएगा. You will come to that answer. So we are done with thermal decomposition. दूसरा तरीका एनर्जी का सनलाइट पहले कर लेते हैं. अगर आप सनलाइट दें तब भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल टूट जाता है, ब्रेक्स डाउन. सनलाइट के लिए यू रिक्वायर ओनली सिल्वर कंपाउंड्स. अगर सनलाइट देके योर रिएक्शन इज अंडर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन इज ड्यू टू सनलाइट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. दिस फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के दो एग्जाम्पल हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का. इंपॉर्टेंट इज सिल्वर कंपाउंड्स आर फोटोसेंसिटिव. और इस बात को समझने के लिए यू शुड नो, लैब में अगर आप जाते हैं केमिस्ट्री लैब में, सिल्वर नाइट्रेट की बॉटल होती है, उसको चेक करिएगा लैब में जाके. यू विल फाइंड ब्राउन कलर की बॉटल में, ग्लास की बॉटल होती है, ब्राउन कलर की बॉटल में रखते हैं, डार्क कलर की बॉटल में, ताकि सनलाइट उसके अंदर ना जाए. बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट विल डीकम्पोज इफ इट इज एक्सपोज टू सनलाइट. सो इट इज फोटो सेंसिटिव. लाइट से सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं. So silver compounds are photosensitive. Therefore, you store them in dark bottles that you can check in your lab. Photochemical decomposition का पहला एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड लिया, उसको हीट किया. सिल्वर क्लोराइड एक वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. जब इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है इनटू सिल्वर विच डिपॉजिट्स, ये ग्रे कलर का होता है, और साथ में क्लोरीन गैस विच इज इवॉल्व्ड. सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करें, ये पेल वाइट कलर का होता है, प्योर वाइट नहीं है, पेल वाइट थोड़ा सा येलोइश होता है, सॉलिड है. इसको हीट करें तो ये भी आपको टूट कर सिल्वर देता है विच इज़ ग्रे इन कलर. साथ में ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है विच इज़ ब्राउन इन कलर. फाइन. ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है ना, दिस इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन योर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ये कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन. इट इज यूटिलाइज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इज वेयर यू यूज सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. सो एक और इंपॉर्टेंट बात, फॉर ऑल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस यू रिक्वायर इट टू ब्रेक. और अगर तोड़ना है तो एनर्जी इज नीडेड. जब एनर्जी इज नीडेड, ऑल सच रिएक्शंस जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब करना है आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एनर्जी अब्जॉर्ब करने का तरीका हीट भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, बट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड द रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको नाम देते हैं. मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से भी डीकॉम्पोजिशन हो जाता है. उसका एग्जाम्पल है वाटर लिक्विड. अगर लिक्विड वाटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो इट ब्रेक्स डाउन. ये जो वाटर है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा. और क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन गैस बन जाएगा. ऑफ कोर्स इक्वेशन को बैलेंस करना है, इसको ट्वाइस कर देते हैं, इसको ट्वाइस कर देते हैं एंड इट इज बैलेंस्ड. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो यू विल गेट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. अब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को टेस्ट करना आपको आता है? कैसे करेंगे? एक
बर्निंग कैंडल गैस के पास लेके आओ तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और अगर बर्निंग कैंडल को ऑक्सीजन के पास लेके जाएंगे तो द फ्लेम ब्राइटन्स। अदरवाइज दोनों गैसेस कलरलेस है। आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप गैस के पास बर्निंग मैचस्टिक लेके गए एंड इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, मतलब इट इज हाइड्रोजन, और अगर बर्निंग मैचस्टिक ऑक्सीजन के पास लेके जाओ तो वो तेजी से बर्न करना शुरू करता है, द फ्लेम ब्राइटन्स, द flame is bigger and wider, more combustion happens, then it is oxygen gas. अब ये वाला एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, इसका मेरे पास वीडियो तो नहीं है बट आई विल एक्सप्लेन ये वाला एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं, ये डिटेल में हमको करना है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक प्लास्टिक के मग में नीचे 2 होल्स करके उसके अंदर रबर के स्टॉपर्स लगा देते हैं और कार्बन की रॉड्स विच आर नथिंग बट ग्रेफाइट रॉड्स जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं वो लगा देते हैं, पानी भर देते हैं, पानी में हम थोड़ा सा एसिड भी डालते हैं टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को फास्ट पास होने देगा, इट इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, इसीलिए थोड़ा सा 2 to 3 ड्रॉप्स एसिड डाल देते हैं। ये रहा ग्रेफाइट रॉड, ये रहे रबर स्टॉपर्स, ये रहे टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब्स को पूरा पानी से भर के इन्वर्ट करके रख देते हैं तो पूरा पानी से भरा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर दीजिए विद अ 6 वोल्ट बैटरी और ये रहा आपका की। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे द करंट पासेस एंड वी फाइंड बबल्स कमिंग आउट इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। जब बबल इज अ गैस ऊपर जाएगी तो पानी को नीचे आना पड़ेगा बिकॉज गैस रिक्वायर्स स्पेस। दोनों में कलरलेस गैस आ रही है और पानी नीचे जाता जाएगा एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व, एक जगह पर गैस का अमाउंट ज़्यादा है, एक जगह पर गैस का अमाउंट कम है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। इफ़ यू रिमेंबर अभी अभी हमने ये इक्वेशन किया था और आप देख सकते हो हाइड्रोजन का अमाउंट डबल है देन ऑक्सीजन का अमाउंट, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये बात हम ध्यान रखें तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाली गैस शुड बी हाइड्रोजन गैस क्योंकि ये डबल द अमाउंट है, और ये वाली गैस शुड बी ऑक्सीजन गैस क्योंकि ये हाफ द अमाउंट है। ऑल्सो एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एक बार समरी कर लेते हैं। एनोड पे योर गैस इज ऑक्सीजन, कैथोड पे योर गैस इज हाइड्रोजन। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 टाइम है। The gases are in the volume of 1:2, oxygen is to hydrogen, anode is to cathode. लेकिन अगर क्वेश्चन आए मासेस के हिसाब से बताइए तो बेटा मासेस के हिसाब से ईच ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ईच ऑक्सीजन हैज़ अ मास ऑफ 16U, तो 16 + 16 इट विल बी 32U is to हाइड्रोजन का क्या होगा 2U विच इज इक्वल टू 8:1 is the mass ratio, 1:2 is the volume ratio of the 2 gases. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कई बार टेढ़ा आ जाता है कि इफ यू पास करंट थ्रू वाटर, what are the gases obtained? At anode, which gas is obtained? What is the ratio of the 2 gases in terms of volumes and in terms of masses? तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो जहाँ पर गैस को आप दोनों गैसेस के लिए यू विल ब्रिंग अ मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक नियर दिस गैस, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड. Bring a burning matchstick near this gas, it will brighten up. So this is oxygen and this becomes hydrogen. ये important part है, कौन से टर्मिनल पे कौन सी गैस, what is the ratio of the 2 gases. Fine, आगे बढ़ जाए। 2 मिनट रुक के इसको नोट कर लेना, ये important है। Moving on to the third category of reaction which is डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टार लगा हुआ है मतलब इसके लिए भी लैब वीडियो आपको मिल जाएगा। जस्ट टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय सीमा माखीजानी और आप वहाँ पहुँच जाओगे। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। यू यूज़ अ मेटल एंड अ मेटल का सॉल्ट। मेटल का सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, मेटल इज अ सॉलिड। इफ यू पुट अ मेटल इनटू अनदर मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर लेटर से रिएक्शन हो गया और अगर रिएक्शन होगा तो कब होगा? व्हेन मेटल A is more reactive than metal B, तब metal A will change
डिस्प्लेस मेटल बी एंड टेक द प्लेस ऑफ मेटल बी। यानी लेट अस से कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्शन हो रहा है तो होगा क्या, मेटल ए बी की जगह ले लेगा, यानी मेटल बी हट जाएगा और मेटल ए will go and combine with the salt. So this is called as a displacement reaction. ये solution में चला जाएगा, ये solid बाहर आ जाएगा। अब ये reaction कब होता है, when A is more reactive than B। ये reaction सिर्फ तब होगा। इस केस में reaction कब होगा, metal X और metal Y का salt है, metal X will take the place of metal Y only if metal X metal Y से ज़्यादा reactive हो। मतलब अगर X Y से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये रिएक्शन होगा। मेटल X मेटल Y की पोजीशन ले लेगा और मेटल Y बाहर आ जाएगा, तो मेटल Y बाहर आ गया प्लस मेटल X जाके सॉल्ट के साथ कंबाइन कर देगा। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाउ डू यू डिफाइन इट, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from its salt solution. More reactive metal X takes the place of Y in its salt solution because X is more reactive than Y. अब ये हमें कैसे पता लगे कि कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा है, उसके लिए there is a reactivity series जो आपको याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज में ये हुआ मोस्ट रिएक्टिव which is potassium and least reactive is platinum। ये ऑर्डर बेटा आपको याद करना पड़ेगा। बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि लिखा है। ऑल्सो इनमें से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आयरन के सॉल्ट्स हैं तो देयर कलर इज पेल ग्रीन सॉल्ट्स होते हैं। तो आयरन का कोई सॉल्ट सोल्यूशन है तो वो पेल ग्रीन कलर का होगा, कॉपर का कोई सॉल्ट सोल्यूशन है तो वो ब्लू कलर का होगा। और अगर हम मेटल की बात करें तो कॉपर मेटल की बात करें तो कॉपर मेटल इज रेडिश ब्राउन। मेटल कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, एज अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इट इज ब्लू सॉल्ट्स। अब ये ऑर्डर आपको याद करने के लिए आप कोई सा भी तरीका यूज कर लें, बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में, पर ये वाला तरीका एक मैंने जो देखा वो ये है। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी में पी एंड बी तो लेड हो गया, फिर भी है एच, क्यों, मिली इज फॉर मर्क्यूरी, एच जी है पर मिली बोल रहे मतलब मर्क्यूरी, मिली, सिल्वर, ऑडी, पता नहीं। आई रिपीट, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है, क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी, पता नहीं इज फॉर प्लैटिनम। डन। और वंस अगेन, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है, क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी, पता नहीं। दैट विल हेल्प यू। अब जो मेटल ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो मेटल नीचे होते हैं वो कम रिएक्टिव है। अब चेक करते हैं कि कैसे करना है। एग्जाम्पल 1 देखिए, आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। अब रिएक्शन होगा या नहीं ये कैसे पता चलेगा, इफ आयरन इज मोर रिएक्टिव। अगर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगा। चेक करते हैं, आयरन ये रहा, कॉपर ये रहा, आयरन इज मोर रिएक्टिव। सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर रिएक्शन होगा। पहली बात ये, रिएक्शन क्या होगा, आयरन विल टेक द पोजीशन ऑफ कॉपर एंड कॉपर विल मूव आउट। तो अगर आयरन कॉपर की पोजीशन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 उसका फॉर्मूला होता है, एंड कॉपर विल मूव आउट एज सॉलिड। ये वाला वीडियो आपके पास है, आप देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, दिस इज ब्लू कलर्ड सोल्यूशन and it changes to pale green colored solution. This was black colored solid and it changes to reddish brown colored solid. Fine. Second example, copper reacts with FeSO4 aqueous. अब copper FeSO4 को displace करेगा, ये check करने के लिए check the position of copper. This is the position of copper and this is the position of iron. So copper is less reactive. अब copper is less reactive, so it will not be able to displace iron, so there is no reaction because copper is less reactive than iron, therefore there will be no reaction. Moving to the third, मैग्नीशियम सॉलिड आपने जिंक सल्फेट एक्वस में डिप कर दिया, तो क्या मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस करेगा, ओनली इफ मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। चेक करिए, मैग्नीशियम
zinc. Magnesium is more reactive than zinc. Therefore, the reaction would happen. Magnesium will take the place of zinc, यानी magnesium sulfate. दोनों की वैलेंसी 2 है, इसलिए फॉर्मूला सेम रहेगा. This goes into solution and your zinc moves out. Done. Moving to example number 4. Silver solid, silver coin को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का और आपने इसमें सिल्वर कॉइन डाला है, तो विल सिल्वर बी एबल टू डिस्प्लेस कॉपर? चेक करते हैं. सिल्वर 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 ये रहा एंड कॉपर ये रहा. कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो नहीं छूटेगा. सिल्वर विल नॉट बी एबल टू ब्रेक ऑफ कॉपर. सिल्वर लेस रिएक्टिव है, सो सिल्वर विल नॉट बी एबल टू ब्रेक दिस बॉन्ड, सो देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज सिल्वर इज less reactive than copper, so there will be no reaction, no displacement. इसको single displacement reaction भी कहते हैं because a metal is displacing just one metal. Okay, last वाला देखो. Zinc is added to sulfuric acid. अब zinc को किसको displace करना है? हाइड्रोजन को. Will zinc be able to displace hydrogen? Only if zinc is above hydrogen in the reactivity series. Reactivity series में ये रहा zinc और ये रहा हाइड्रोजन. यस, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब द रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, यू विल एंड अप इन जिंक सल्फेट, पानी में चला जाएगा सोल्यूशन, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. क्लियर? इसका वीडियो ऑफ द लैब अवेलेबल है. इफ यू वांट टू सी द वीडियो, यू वांट टू सी द कलर चेंजेस, प्लीज यू आर वेलकम टू डू सो. फर्स्ट वाला रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. उसमें कैसे क्वेश्चन आता है? कंप्लीट द गिवन रिएक्शन. आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू व्हाट? एक ऑप्शन है. दूसरा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो उसमें आपको ये बोलना है द ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू पेल ग्रीन सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड द ब्लैक कलर्ड आयरन वी फाइंड चेंजेस इनटू कॉपर विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल्स. जनरली आयरन की जगह पे हम आयरन नेल्स डालते हैं, तो ब्लैक कलर के आयरन नेल्स के ऊपर यू विल ऑब्जर्व ब्राउनिश कलर का कॉपर डिपॉजिट होता हुआ. फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी. इस बार इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना है. इस केस में रिएक्शन में व्हाट डू यू से? इसकी डेफिनेशन क्या है? इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑन मिक्सिंग 2 सॉल्ट सॉल्यूशंस. बेटा, नो मेटल इज यूज्ड, बोथ ऑफ देम आर सॉल्ट सॉल्यूशंस. 2 केमिकल कंपाउंड्स होंगे जिनको आप मिक्स कर रहे हैं और उसमें आयंस विल गेट इंटरचेंज्ड एंड सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल देखिए, एक AB सॉल्ट है और एक XY सॉल्ट है. AB सॉल्ट में हमेशा जो पहले लिखा होता है वो कैटायन होता है, जो बाद में लिखा होता है वो एनायन होता है. जो पहले लिखा होता है वो कैटायन होता है, जो बाद में लिखा होता है वो एनायन होता है. सो एक्सचेंज ऑफ आयंस जब होगा तो A कैटायन विल कंबाइन विद द Y विच इज द B एनायन. A विल गो एंड कंबाइन विद इसका एनायन एंड इसका कैटायन विल कंबाइन विद इसका एनायन, यानी X विल कंबाइन विद B. सो देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ आयंस. A कंबाइंस विद Y, X कंबाइंस विद B. X आगे लिखेंगे क्योंकि वो कैटायन है. दोनों सॉल्यूशंस मिले, दोनों ही सॉल्यूशन में चले जाएं. कई बार एक सॉलिडिफाई हो जाता है. अगर दोनों सॉल्ट सॉल्युबल हैं तो एक्वस है, पर जनरली एक डिसॉल्व नहीं होता है और वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है. इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन भी रिएक्शन लिखते हैं क्योंकि वन ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स इज एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट. ओके, एग्जाम्पल 1. ये दोनों का वीडियो अवेलेबल है, यू कैन वॉच ऑन द चैनल. जस्ट राइट डबल डिस्प्लेसमेंट बाय सीमा माखीजानी, क्लास 10th, एंड यू विल रीच इट. ये रहा पहला एग्जाम्पल. सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला. दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस हैं. सोडियम विल कंबाइन विद क्लोराइड. Cl2 नहीं होगा बेटा, NaCl. फॉर्मूले में 1 वैलेंसी 1 वैलेंसी. सोडियम कंबाइंस विद क्लोरीन, बेरियम कंबाइंस विद सल्फेट. ये हुआ आपका इंटरचेंज ऑफ आयंस. इन दोनों में से बेटा नमक तो हाईली सॉल्युबल होता है तो एक्वस रहेगा. बेरियम सल्फेट के नीचे आप साइड में ऐसा एरो डाल देंगे बिकॉज इट इज एन इनसॉल्युबल. यू विल गेट अ वाइट सॉलिड विच इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट. वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है. सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर हाईली सॉल्युबल. ये कहीं पर नोट कर लीजिएगा. सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, इसीलिए उनके लिए आप हमेशा एक्वस यूज करेंगे. फाइन. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए.
अच्छा, इसको बैलेंस भी करना पड़ सकता है, Na2 है, Cl2, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट वाला देखो, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन इज मिक्स विद पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। दोनों सोल्यूशंस हैं, दोनों सॉल्ट्स हैं, एंड यू नीड टू डू एक्सचेंज ऑफ आयंस। लेड विल नाउ कंबाइन विद आयोडाइड, लेड की वैलेंसी 2 है बेटा, तो PbI2 लिखोगे। पोटेशियम विल कंबाइन विद नाइट्रेट, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो KNO3। प्लीज डू नॉट मेस अप विथ फॉर्मुलेज। अगर आपको फॉर्मूले नहीं लिखने आते हैं तो प्लीज प्रैक्टिस सिंबल्स एंड वैलेंसीज एंड फॉर्मूला राइटिंग। पोटेशियम का सॉल्ट जैसे मैंने बोला आर सॉल्युबल, तो ये तो हो जाएगा बेटा एक्वस, और ये है इनसॉल्युबल, एंड दिस इज अ येलो PPT। ये आप वीडियो में देख भी सकते हैं, लेड आयोडाइड का येलो PPT आता है। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बैलेंस कर लेते हैं। I2 है तो यहाँ पे ट्वाइस लगाना पड़ेगा, और इसको भी यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं, एंड दैट्स इट। दिस कंप्लीट द इक्वेशन भी आता है, एंड व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये अच्छा, व्हाट इज द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो अगर फर्स्ट रिएक्शन आए तो आप बोलेंगे द प्रेसिपिटेट इज बेरियम सल्फेट, इट इज वाइट इन कलर। सेकेंड वाला आए तो यू विल से द प्रेसिपिटेट इज लेड आयोडाइड, विच इज अ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। So your double displacement reaction at times is also called precipitation reaction, क्योंकि उनमें generally one insoluble product बनता है, यानी यहाँ पे बेरियम सल्फेट और इसमें लेड आयोडाइड। Definition is double displacement reaction involves exchange of ions कब? On mixing two salt solutions। Aqueous होना चाहिए दोनों में। two salt solutions को जब हम मिक्स करते हैं तो उनके ions इंटरचेंज होते हैं। इसका कैटायन इसके एनायन से कंबाइन करता है, और इसका कैटायन इसके एनायन से कंबाइन करता है। फाइन। द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज प्रोड्यूस्ड, कोई भी रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट बनता है और साथ में हीट निकले तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज यूज्ड अप, यानी आपने हीट को प्रोड्यूस नहीं किया है, यूज अप किया है। दैट मीन्स इसमें एंडोथर्मिक है। इनमें योर कंटेनर बिकम्स हॉट, जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं ना वो गर्म फील होगा। इनमें आपका कंटेनर विल बिकम कोल्ड, वो टेस्ट ट्यूब आपको ठंडा फील होने लगेगी। और ये एग्जाम्पल हमने अभी किया था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में। सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स देते हैं, और ब्रेक करने में एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए तो ऑल दीज रिएक्शंस डन ऑन दिस एग्जाम्पल आर एंडोथर्मिक की कैटेगरी में। So all thermal decomposition reactions fall under the category of endothermic. In fact, photochemical, all decomposition reactions, photochemical, electrolytic, कोई भी decomposition reaction होगा उसमें energy चाहिए, so they fall under endothermic reaction. Exothermic reaction को देख लेते हैं। कोई भी reaction अगर burning involve कर रहा है तो उसमें heat produce होती है। कार्बन को बर्न करिए ऑक्सीजन में तो हीट, शुरू में थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, बट मैसिवली हीट रिलीज ज़्यादा होती है। मीथेन गैस इज नथिंग बट योर CNG। CNG ऑक्सीजन से कंबाइन करके गिव्स यू CO2 and H2, अगेन हीट इज रिलीज्ड। ग्लूकोज को जब हम बर्न करते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज यूज अप होता है, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन। जो खाना आप खाते हैं वो टूटता है डाइजेशन में, और जब रेस्पिरेशन होता है तो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 H2O और आपको एनर्जी देता है। सो यू आर एबल टू वर्क ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी टू रिलीज एनर्जी। एक और एग्जाम्पल है, वेजिटेबल मैटर जब पड़ा पड़ा कंपोस्ट बनता है तब भी हीट रिलीज होती है, एंड दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कई बार क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, हाउ डू यू क्लासीफाई रेस्पिरेशन एंड व्हाई डू यू कॉल इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये इक्वेशन आना चाहिए। Also, formation of compost is considered as what category of reaction? So it is also an exothermic reaction. Fine. Moving ahead. The next category of reaction is called redox reaction. ये जो word redox है ना, it is actually a word out of two words, reduction and oxidation. Reaction where reduction and oxidation occur simultaneously. दोनों होने चाहिए, एक सिर्फ होने से नहीं चलेगा। वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं इज कॉल्ड योर रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते क्या?
Reduction is loss of oxygen, gain of hydrogen and gain of electrons. So कोई पूछे define reduction, a reaction in which oxygen is gained or a reaction in which oxygen is lost, hydrogen is gained or electrons are gained is called reduction. और उसका exactly opposite होगा oxidation. Where there is a gain of oxygen, loss of hydrogen and loss of electrons falls under the category of oxidation. So oxidation is a reaction where gain of oxygen can happen, loss of hydrogen can happen, loss of electron can happen. Fine. Moving further with the examples now. पहला example देखिए. Zinc oxide reacts with carbon to give you zinc plus carbon monoxide. As you can see, अगर हम zinc को देखें तो zinc oxide is changing to zinc. यानी there is a loss of oxygen. Oxygen कम हो गया. Loss of oxygen किस category में आता है? So this part is reduction. Carbon is changing to carbon oxide. यानी there is a gain of oxygen. यानी this part is oxidation. So zinc oxide is changing to zinc is reduction part. Carbon is changing to carbon monoxide is oxidation part. Therefore this is a redox reaction. You can also ask, ये भी कोई पूछ सकता है, what is the reduction half reaction? इसमें आधा reduction का part कौन सा है? तो you would say zinc oxide is changing to zinc is reduction half reaction. और इसमें oxidation half reaction क्या है? Carbon is changing to carbon monoxide is oxidation half reaction. एक और important बात, जिस चीज का रिडक्शन हो रहा होता है ना, इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ रिएक्टेंट विच अंडरगोज रिडक्शन. फाइन. जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन. फाइन. अब से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA लिखेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट को RA लिखेंगे. एम आई क्लियर? Coming to the second example. इस example में देखिए, copper oxide is changing to copper. Again there is a loss of oxygen. Since there is a loss of oxygen, therefore it comes under the category of reduction. और जिस चीज का reduction होता है that acts as an oxidizing agent. Hydrogen is changing to H2O. यानी there is a gain of oxygen. Gain of oxygen को हम क्या बोलते हैं? Oxidation. और जिस चीज का oxidation होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. फाइन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड पे ढूंढिएगा, प्रोडक्ट साइड पर नहीं. और एग्जांपल कर लेते हैं. सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. अब इसमें क्या हो रहा है? सोडियम इज गेनिंग ऑक्सीजन. सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन किया, देयरफॉर दिस इज ऑक्सीडेशन. और जो चीज ऑक्सीडाइज होता है दैट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा हैज टू बी रिडक्शन. हालांकि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट देयर इज अ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट. कैसे? जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन देना, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लेना. तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा. सो हम ये बोलते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है. सो वी से यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा एंड दिस शुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये कॉन्सेप्ट जब आप आयनिक बॉन्ड कर देंगे ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. एज ऑफ नाउ किसी भी रिएक्शन में अगर आधा हिस्सा ऑक्सीडेशन है तो दूसरा आधा हैज़ टू बी रिडक्शन. इस केस में देयर इज अ सिंगल प्रोडक्ट, तो दोनों रिएक्टेंट हैव टू गो टू द सेम सिंगल प्रोडक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. Manganese dioxide reacts with hydrochloric acid to give you manganese chloride plus water plus Cl2. तो पहला, manganese dioxide forms manganese chloride. Manganese dioxide अगर manganese chloride बना रहा है तो there is a loss of oxygen. Loss of oxygen is called reduction. अगर reduction हो रहा है तो it is acting as an oxidizing agent. HCl is changing to Cl2. यानी there is a loss of hydrogen. Loss of hydrogen is called oxidation. ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. माइंड यू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट में ही ढूंढिएगा, इधर नहीं ढूंढिएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. स्टॉप द वीडियो, डू इट ऑन योर ओन आफ्टर 2 minutes and then have a look at it again. Fine. So your lead oxide is changing to lead. There is a loss of oxygen. Yani this is reduction. Yani this is acting as an oxidizing agent. Carbon is gaining oxygen, yani this is oxidation, yani this will act as a reducing agent. Fine.
Moving to the last example. Ferric oxide changes to iron, yani there is a loss of oxygen, which is reduction. Therefore, this is acting as a oxidizing agent. Aluminium changes to aluminium oxide, yani there is a gain of oxygen, which is oxidation, which is, therefore, this will act as a reducing agent. Reducing agent और oxidizing agent please हमेशा reactant side में ढूंढिएगा, product side में नहीं होते हैं. Fine. So we finish redox reaction now. एक बार re-revision. Reduction is loss of oxygen, gain of hydrogen, gain of electrons. Oxidation is the reverse. Oxidation का मतलब gain of oxygen हो रहा है, loss of hydrogen हो रहा है या loss of electrons हो रहा है. ये दोनों एक दूसरे के opposite है. A reaction जिसमें oxidation and reduction दोनों simultaneously हो रहे हैं is called as a redox reaction. Moving on to the next topic, which is corrosion. Now, corrosion और rusting एक बात नहीं होता है. Corrosion is valid to all reactive metals, while rusting is only valid to iron. So, metals attacked by atmosphere, which means oxygen, moisture, acids in the air, acidic gases in the air, and they undergo corrosion. So it gets corroded, मतलब metal gets eaten away, उसमें corrosion हो जाता है. So whenever you have a metal which is exposed to atmosphere, acts with oxygen, moisture and acids to undergo corrosion, eats away, is called as corrosion. Corrosion of silver जब होता है तो silver changes into silver sulfide and which is black in color. आपकी jewelry changes to black in color all because of the air exposure. If you have copper in it, then in that case, कॉपर के केस में कॉपर तो बेटा रेडिश ब्राउन होता है. इफ रेडिश ब्राउन का कॉपर एयर से एक्सपोज्ड हो जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो तो इट चेंजेस इनटू ग्रीन कलर्ड सॉलिड. ग्रीनिश उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट. इसका नाम है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेलाचाइट ग्रीन. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसका कॉमन एग्जाम्पल है. ग्रीनिश कलर की है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अभी बिकॉज इट इज टोटली कोटेड विथ दिस. Initially when it was brought it was reddish, shiny brown, and over a period of time because of corrosion the copper statue has now got a coating of basic copper carbonate on it and it is that green colored statue. You can have a look of the pictures of Statue of Liberty. Moving to the third, corrosion of iron is called rusting. So corrosion और rusting दो अलग होते हैं. Corrosion is for all metals, rusting is specifically for iron. Iron combines with oxygen and moisture in the air to give you Fe3O4. बेटा Fe3O4 का कोई नाम नहीं है, ये सिंगल कंपाउंड भी नहीं है. ब्राउन कलर का रस्ट होता है. इट इज एक्चुअली अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ आयरन, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड टुगेदर. ऐड कर दो दोनों को, आयरन 1 आयरन 3, सो Fe3, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 O4. सो दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन. ये सिंगल कंपाउंड नहीं है, इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ आयरन. दीज टू को जोड़ के ये बनता है विच इज कॉल्ड एज रस्टिंग. अब रस्टिंग को इट इज़ अ स्लो प्रोसेस क्योंकि टाइम लगता है एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस क्योंकि जो रस्ट मेटल के ऊपर डिपॉजिट होती है ना वो आसानी से उतर जाती है. तो अगर उतरती जाएगी तो न्यू मेटल विल बी एक्सपोज टू एटमोसफेयर और रस्टिंग बढ़ती जाएगी. सो इट डजंट स्टॉप एट फर्स्ट स्टेज. सो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो आर्टिकल पूरा का पूरा आयरन का आर्टिकल खत्म हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो द रीज़न कितने सारे ब्रिजेस टूट जाते हैं इज ऑल बिकॉज ऑफ करोजन ऑफ आयरन. आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, करोजन के लिए द ऑप्शंस इज पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं. ऑयल और पेंटिंग से क्या होगा, एयर से कट ऑफ हो जाएगा. गैल्वेनाइजिंग इज कोटिंग विथ जिंक. जिंक मेटल के ऊपर कोट कर देते हैं. जिंक की रस्टिंग बहुत स्लो है और उसका जो रस्टिंग होता है वो हटता नहीं है. जिंक का जिंक ऑक्साइड इज टाइटली बाउंड. अलॉइंग इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अलॉइंग के लिए ये रहा आयरन. आयरन में मेटल मेल्ट करके थोड़ा सा निकल और क्रोमियम डाल दो तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है. कॉपर का जो हम अलॉय बना सकते हैं वो ब्रॉन्ज है जिसमें यू मिक्स टिन विथ कॉपर. ब्रास है जिसमें यू मिक्स जिंक विथ कॉपर. सो कॉपर प्लस जिंक मिक्स ब्रास, कॉपर मिक्स्ड विथ टिन मिक्स ब्रॉन्ज. रस्टिंग ऑफ आयरन को थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए आई हैव टेकन 5 टेस्ट ट्यूब्स.
In all the 5 test tubes, I have got an iron nail in them. And then there are different compositions. फर्स्ट वाले में मैंने आयरन नेल में वाटर डाल दिया. अब रस्टिंग होगा या नहीं ये सोचना है. सेकेंड वाले में भी मैंने वाटर डाला है आधा. थर्ड वाले में पूरा वाटर डाल दिया है लेकिन बॉइल्ड वाटर डाला है. फोर्थ वाले में बॉइल्ड वाटर के ऊपर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है. फिफ्थ वाले में खाली टेस्ट ट्यूब है जिसमें आयरन का नेल डाला हुआ है. और सिक्स्थ वाले में आयरन नेल के साथ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पड़ा हुआ है. नाउ स्टॉप द वीडियो, थिंक फॉर 5 minutes एंड कम टू अ कंक्लूजन कि किस में रस्टिंग होगा और किस में नहीं. द आंसर इज हियर. आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम. फर्स्ट वाले में रस्टिंग होगा. क्यों? क्योंकि वाटर हैज गॉट ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन इट. दैट इज द रीजन एक्वाटिक लाइफ इज सस्टेनिंग. फिशेज सर्वाइव इन वाटर बिकॉज वाटर डिजॉल्व्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. तो वाटर में एयर तो है, ऑक्सीजन तो है, सॉरी. सो दिस ऑक्सीजन इन वाटर कॉजेज रस्टिंग. सेकेंड वाले में देखिए वाटर भी है और एयर भी है, दोनों हैं तो रस्टिंग तो होना ही है. थर्ड वाले में मैंने बॉइल्ड वाटर डाला है. जब आप वाटर बॉईल करते हैं ना तो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. तो इसका मतलब, और ऊपर से आपने कॉर्क कर दिया, यानी इसमें देर इज नो ऑक्सीजन, देर इज ओनली वाटर. ओनली वाटर से तो रस्टिंग हो ही नहीं सकता. इफ यू वॉन्ट रस्टिंग टू हैपन देन यू रिक्वायर ऑक्सीजन, यू रिक्वायर मॉइस्चर, देन ओनली इट विल चेंज टू रस्ट. फोर्थ टेस्ट ट्यूब देखिए, बॉइल्ड वाटर है यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है. उसके बाद आपने ऊपर से मस्टर्ड ऑयल डाल दिया. मतलब अगर ऊपर एयर है भी तो एयर अंदर तो नहीं जा सकती. तो अगर एयर अंदर नहीं जा सकती मतलब देर इज नो ऑक्सीजन. इफ देर इज नो ऑक्सीजन देर इज नो रस्टिंग. फिफ्थ में देखिए सिर्फ एयर दिख रही है लेकिन एयर में मॉइस्चर तो होता है, इसीलिए रस्टिंग होगा. लास्ट में देखिए यहाँ पर एयर है जिसमें मॉइस्चर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. मतलब यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है. देर इज़ नो मॉइस्चर, यानी इसमें रस्टिंग नहीं होगा. फाइन, इसको क्विकली ड्रॉ कर लीजिएगा, अपने आप को समझा लीजिएगा. एक वीडियो है चैनल पे ऑन करोजन, तो अगर आपको वो भी देखना हो तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन करोजन. स्पेशल वीडियो ओनली फॉर करोजन भी बना हुआ है. फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. रैंसिडिटी इज अ टॉपिक रिलेटेड टू ऑयली फूड्स. यानी जैसे अगर आप मार्केट से मठरी लेके आए या मिक्सचर लेके आए, पैकेट आपने खोल दिया, खा लिया और थोड़ी देर बाद उसको भूल गए, 10-12 दिन हो गए, उसके बाद वो मिक्सचर आप नहीं खा पाते, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है. एंड दैट इज व्हाट इज रैंसिडिटी. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैंसिडिटी इट इज़ फॉर ऑयली foods and oils. Oily foods and oils को air में they get oxidized. In the presence of air they oxidize to change in their smell में भी change हो जाता है, taste में भी change हो जाता है, and we say that they have become rancid. So when oily foods are exposed to air there is a change in their smell and taste. Such a phenomenon is called as rancidity. तो इसको रोकना कैसे? पहली चीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन हटा देगा. अगर ऑक्सीजन ही हटा देगा तो देर विल नॉट बी एनी चेंज इन स्मेल और टेस्ट. यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर. अगेन अगर एयर टाइट कंटेनर है तो ऑक्सीजन कम जाएगा तो फिर रैंसिडिटी नहीं होगा. लास्टली मार्केट में हम लेज के चिप्स खरीदते हैं या किसी और हल्दीराम के चिप्स खरीदते हैं जो एयर टाइट पैकेट होता है, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, वो फूला हुआ पैकेट खरीदना है. फूले हुए के अंदर देर इज अ गैस विच इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस होने के कारण देर इज नो रैंसिडिटी, देर इज नो ऑक्सीजन इन इट. तो वो वाले चिप्स के पैकेट खराब नहीं होते. लेकिन अगर चिप्स के पैकेट में से एयर निकली हुई हो, आपको एयर लगती है, गैस होती है वो विच इज नाइट्रोजन गैस विच प्रिवेंट्स रैंसिडिटी. आपके चिप्स फ्रेश लगते हैं. फाइन, दिस इज द लास्ट कंटेंट. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉपर है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए. पहली चीज, कॉपर मेटल इज शाइनी ब्राउन इन कलर. कॉपर मेटल जब ऑक्सीजन को एक्सपोज होता है और आप उसे हीट करते हैं, करोजन नहीं बोल रही हूं मैं, करोजन करेंगे तो वो मैलाचाइट ग्रीन होगा. ऐसे एटमॉस्फेयर से इट टर्न्स इनटू बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज मैलाचाइट ग्रीन, तब ये बनता है. लेकिन अगर आप उसको हीट करें एयर में, स्ट्रांगली बर्न टाइप करें, तो इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड एंड दिस इज ब्लैक इन कलर. तो कभी अगर लिखा हो अ मेटल ऑन हीटिंग बिकम्स ब्लैक एंड देन अदर इंफॉर्मेशन, तो आपको ये हिंट हो जाना चाहिए कि ऑक्साइड किसका ब्लैक होता है, इज कॉपर.
दिस इज अगेन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि मोर देन वन रिएक्टेंट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ऑफकोर्स इसको अगर बैलेंस करना है हमको तो यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा. कॉपर शाइनी ब्राउन होता है, ऑलरेडी सेट. एटमॉस्फेयर में फॉर्म्स बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दैट इज योर करोजन. उसको प्रिवेंट करना है तो कॉपर के अलॉय बना सकते हैं. ब्रॉन्ज बना सकते हो बाय मिक्सिंग कॉपर विद टिन. ब्रास बना सकते हो बाय मिक्सिंग कॉपर विद जिंक. एंड कॉपर के सॉल्ट्स का कलर ब्लू कलर के सॉल्ट्स होते हैं. तो कॉपर के सॉल्ट में अगर आपने पानी डाल दिया, एक्वस सोल्यूशन बना दिया, तो वो ब्लू कलर का होगा. आयरन का सॉल्ट अगर आपके पास है और आपने उसमें पानी डाल दिया तो वो पेल ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनता है. ये इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी. With this, I come to the end of the chapter, and it has taken me 50 minutes to wind up the chapter. So, your chapter 1 can be done in 50 minutes via this video. Hope it helps you out. Do well, very well in life. Stay happy, stay blessed. Bye for now. Please keep watching the other videos also. I'll be posting one short video for all the chapters. So, for first chapter, it's done, and it's taken me 50 minutes. Bye. Love you all.